and there are certain materials which are found restricted, and there is a third list of the materials which is prohibited. Now let me clear this point of restricted material. यहाँ पे एक definition है, मैं उसको highlight कर रहा हूँ. Look at this one. In the annexure, the table which is given here, restricted means the conditions and the procedures for the use shall be subjected to conditions. Means any certification agency is only allowing this restricted material with certain guidelines. यहाँ पर restricted का मतलब ये नहीं है कि इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. इसका मतलब है these inputs can be used under the organic farming but with certain guidelines. The reason is there is a possibility that they can cause certain contaminations. Maybe there is a problem of some nutritional imbalances, or maybe it can cause certain natural resource depletion. तो उनका इस्तेमाल कैसे करना है, कितना करना है, दे ऑल कम्स अंडर द वन लिस्ट, रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट. अभी आपको भी सरप्राइज होगा, यू विल बी वेरी सरप्राइज टू सी सम ऑफ द मटेरियल्स व्हिच यू थिंक दे आर डायरेक्टली परमिटेड टू बी यूज्ड. ये मैं लिस्ट में आपको बता रहा हूं, प्लीज इसमें से कुछ पॉइंट्स हैं, इसको लिखते जाइए. जैसे मैं बताता हूं, लेट्स सी व्हाट आर परमिटेड मटेरियल्स प्रोड्यूस ऑन एन ऑर्गेनिक फार्म यूनिट. जो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनिट में प्रोड्यूस होता है वो सब परमिटेड है. लेट्स से दैट FIM, पोल्ट्री मैन्योर, स्लरी, काउ यूरिन, ये आपकी परमिटेड में आती है. क्रॉप रेजिड्यूज, जो आपके प्रीवियस क्रॉप है उसका हार्वेस्ट, ग्रीन मैन्योर, दिस इज परमिटेड. सिमिलरली other leftover material like straw, paddy straw, maize stalk, anything, or any kind of a mulches, they are also permitted because these all things have been generated in the farm itself. तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. Now let's see some of the materials which has been considered as the outside the organic farm. अब इसमें से कुछ चीजें सिमिलर होंगी. Some of the points, some of the inputs maybe look similar, but they have been coming out from the farm. आपने खुद नहीं करा है, आपने परचेज किया है. So it comes under the restricted one, like blood meal, meat meal, bone meal, and feather meal. This is all restricted one. आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन according to the guidelines जो सर्टिफाइंग एजेंसी है. Then compost made from any carbon based residues, even including the poultry, restricted है. Similarly any factory based, आपने कोई फैक्ट्री बेस्ड बना रखा है, जैसे आपने फार्म एंड मैन्योर है, वो कोई कंपनी बनाती है, वो बेच रही है डायरेक्ट, वो यूज कर सकते हैं बट विद सर्टेन अप्रूवल ऑफ द एजेंसीज. ये भी रेस्ट्रिक्टेड में आता है. सिमिलरली फिश प्रोडक्ट्स विदाउट प्रिजर्वेटिव्स, गुआनो, ये भी आपका वेस्ट मटेरियल है. ह्यूमन एक्सक्रीटा, दिस इज एक्चुअली प्रोहिबिटेड. लुक एट दिस पॉइंट. आप किसी भी तरीके का ह्यूमन एक्सक्रीटा यूज नहीं कर सकते हैं, चाहे फीसिस हो चाहे ह्यूमन यूरिन हो, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. दिस इज टोटली प्रोहिबिटेड. If somebody says that the night soil can be used in the organic farm, no, human excreta is totally not allowed. Similarly any industrial waste, जो हमारे टेक्सटाइल या फूड इंडस्ट्रीज हैं, उसका माइक्रोबियल, प्लांट और एनिमल ओरिजिन विदाउट एनी सिंथेटिक, you can use them, means they are restricted. Similarly now my main focus will be on prohibited materials. आपको prohibited बताना जरूरी है क्योंकि वो confusion clear करेगा. Now peat sometimes people say that it can be used because this is generated organically somehow, but somehow it may be considered due to the high contaminations, contaminant materials inside it. तो इसका soil conditioning purpose के लिए prohibited होता है, आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते.
आपको क्योंकि इसका सोर्स नहीं पता होता बहुत जल्दी, और मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज बीन सीन दैट peat is usually considered other heavy toxic elements and metals inside of it, so it could not be utilized as a soil conditioners. It is totally prohibited under the organic farm. Now this one, look at this one, the sawdust, wood shavings, wood provided, if even it comes from the untreated wood, you can use them. जब आपको सॉडस्ट होता था, आपने देखा होगा उसका रेशियो करीबन 400 तक जाता है, सीएम रेशियो 400:1, इवन इट इज इंक्लूडेड, ये परमिटेड है, अगर आपको कहीं से मिल रहा है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सीवीड और सीवीड बेस्ड प्रोड्यूस, दे आर रेस्ट्रिक्टेड वन। एक्सक्यूज मी बहुत सारे सर, सी, जी सर जो अभी आपने मैटर प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द ऑर्गेनिक फार्म यूनिट हाँ हाँ बताया था, हाँ, तो सर उसमें बोन मील में लिखा था विदाउट प्रिजर्वेटिव्स विदाउट रेस्ट्रिक्टेड है, प्रिजर्वेटिव्स, अगर करेक्ट। विद प्रिजर्वेटिव्स होगा तो वो परमिटेड होगा क्या? नहीं 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 नहीं, विदाउट प्रिजर्वेटिव मींस इन द नेचुरल फॉर्म। अगर आपने प्रिजर्वेटिव्स यूज कर लिए तो हाँ, आपको उसके लिए अलग से फिर एक गाइडलाइन देखनी पड़ेगी, हो सकता है वो मना कर दिया जाए, ठीक है सर। क्योंकि सर्टिफिकेशन एजेंसी एक हद तक बोन मील और रॉ मील और ब्लड मील को अलाउ करती है, फिश मील को अलाउ करती है, लेकिन वो अपनी नेचुरल फॉर्म से ही बनाया गया हो, उसमें कुछ और ना डाला गया हो। अगर प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं, बिकॉज समटाइम द प्रिजर्वेटिव्स हैव नॉट बीन कोटेड ऑन द बॉक्स, उसमें कुछ कोड चलते हैं, कोड 1036 प्रिजर्वेटिव हैव बीन यूज्ड। आप कभी भी देख लेना, आप किसी भी तरीके का कोई प्रोसेस फूड या पैक्ड मटेरियल खरीदते हैं, इवन द चिप्स, जो फ्रेंच फ्राइज चिप्स होती हैं, जो अंकल चिप्स आती है, अगर वो भी खरीदते हैं उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, बट दे हैव बीन कोटेड एज 1026, कोड नंबर चलता है, इट हैज बीन यूज्ड, तो आपको नहीं पता वो क्या है। तो ऐसी कंडीशन में उसको या तो प्रोहिबिटेड कर देते हैं, या मे बी द कंपनी हैज टू बी रिवील अबाउट दैट पर्टिकुलर कोड प्रिजर्वेटिव्स, वो पता होना चाहिए। ओके, कंटिन्यू here, outside material, if you say vermicast is restricted, animal charcoal is considered as restricted, कंपोस्ट है जो आपके मशरूम एरिया से आपको मिलता है, उसको भी रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन में आता है। यहाँ पर कंपोस्ट व्हाटएवर इज, ये पॉइंट आप जरूर देखिएगा, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, कंपोस्ट विच हैज बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द प्लांट रेजिड्यूज, आप उसको अलाउ कर सकते हैं, वो परमिटेड होता है, उसके लिए आपके सर्टिफिकेशन एजेंसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड दैट। ये लिस्ट मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, मैं ये शेयर भी कर लूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस वन, लेकिन आप लिस्ट जैसे जैसे चेक करते रहेंगे, सम ऑफ द कंफ्यूजन विल बी वेरी मच क्लियर टू यू। फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, एनीथिंग विच इज फार्म बेस्ड और फार्म डेवलप्ड, इट इज परमिटेड एट ऑल, आप कर सकते हैं इसका इस्तेमाल, लेकिन if something which has been bought upon from other areas but they are still considered as an organic, they are used only under the certification agency's approval only, वो restricted में ही आएगा। यहाँ पर देखिए मिनरल्स, देखिए कौन कौन से मिनरल्स आपके परमिटेड हैं, मैं परमिटेड वाले आपको दिखा देता हूँ। These three which I am saying it, calcified seaweed, कैल्शियम क्लोराइड, एंड जो चौक होती है या जिप्सम होता है, दे आर ऑल डायरेक्टली अलाउड टू यूज अंडर द ऑर्गेनिक फार्मिंग, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट इज रॉक फॉस्फेट। सी, रॉक फॉस्फेट इज द नेचुरल फॉर्म, बट स्टिल इट कम्स अंडर द रेस्ट्रिक्टेड मैनर। इसका रीजन है, sometimes rock phosphate which is not naturally available in the market, it has been reprocessed by the industries, किसी न किसी तरीके से आपकी वो कुछ प्रोसेसिंग करते हैं और तब उसको मार्केट में उपलब्ध कराते हैं। सो वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ द प्रोसेसिंग दे हैव बीन डन, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ होता है, उसको तोड़ा जाता है, दे हैव बीन क्रश्ड, इट हैज बीन मिनिमाइज्ड इनटू अ मिनिमम साइज, और क्या टेक्निक यूज हुई है ये सब पता होना जरूरी है। दिस इज वन ऑफ द रीजन रॉक फॉस्फेट नेचुरल होने के बावजूद भी यू कैन नॉट परमिट इट डैम डायरेक्टली, इट कम्स अंडर द रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट। बेसिक स्लैग है,
This is also considered, even it is original or natural, the basic sludge comes under the restricted one. ये देखिए सोडियम क्लोराइड जो आपका नमक है, कॉमन सॉल्ट, दिस इज परमिटेड टू बी यूज्ड. सिमिलरली एप्सॉन सॉल्ट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट, ये आपने सुना होगा, ये मार्केट में अवेलेबल है. एप्सॉन सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, दिस इज परमिटेड. जिप्सम, as I already mentioned to you, this is also permitted directly to be used. Silage is sometimes have been used, not very commonly, but silage and clay ये permitted है. नीचे देखिए सबसे लास्ट में clay. Clay in any form. Zeolite or bentonite is the most common one, which is available, even from the commercial one. So bentonite and zeolite can be used directly; they are permitted. But other than this, like sulfur, you cannot use directly. It comes under the restricted list. Now the last point of this one, microbial worm. अब microbial worm की हम अगर बात कर लें, any biofertilizers, yes. Any biodynamic, yes. Any plant extract, yeah, botanical extract, yes. Even the vermiculate, you can use them. So, considering these points, the microbiological preparations, some of the soil conditioners, some of the nutrient sources, this list has been drawn, which let you understand the insight of, yes, proper materials can be utilized, but after the approval of the licensed agencies only. और कुछ मटेरियल्स जो आपके इन फार्म डेवलप होते हैं उसका डायरेक्टली इस्तेमाल किया जा सकता है, बट यू शुड कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल ऑफ दैम. नाउ दिस इज द एंड ऑफ द टुडेज क्लास. यहाँ पर आपका क्लास आपका खत्म होता है. और इसके अलावा अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो मुझे कोई और सजेशन है तो उससे आप पूछ सकते हैं.